क्या ये 3-4 जनों के अलावा सारे क्या फोन रख के चले जाते हो क्या? फिर सोच रहे ना मैं मेरी मर्जी से एब्सेंट लगा दूंगा लोगों की, फिर नेट भी खर्च हो जाएगा, नेट से भीड़ लग जाएगी। वो 2-3 जनों के अलावा किसी के जवाब नहीं आते हैं। मटेरियल फिर याद रखना, आगे वाले मटेरियल में जब भी प्रोवाइड करूंगा जब आगे वाले जवाब देना चालू करोगे, और जो जवाब दे रहा है केवल उन्हीं को सेलेक्ट करके मैं मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। ये भी ऑप्शन है गूगल क्लासरूम के अंदर, पता है ना? आज पढ़ेंगे अपन रोलर कॉम्पैक्टर। कॉम्पैक्टर पता है ना क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पैक्टर? Soil compaction is the process in which entrapped air between voids is displaced from the pores between the soil grains. Compaction of the soil is obtained by various action and roller machines. There are different types of rollers and other soil compaction equipment available. Use of these compacting machine depends on soil types and moisture conditions. Smooth wheeled roller, pneumatic tire roller, sheep foot roller और वाइब्रेटिंग एंड टेम्पटिंग रोलर। ये तुम लोगों ने सब ने अपने इसके नाम सुने होंगे, इन सब के बारे में पता है ना? स्मूथ व्हील्ड रोलर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ व्हील्ड रोलर? व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ व्हील्ड रोलर? व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ व्हील्ड रोलर? न्यूमेटिक टायर रोलर क्या होता है? शीप फूट रोलर क्या होता है? और वाइब्रेटिंग टैंपिंग रोलर क्या होता है? ये क्या क्या है, तुम लोगों ने कभी देखे है? तुम लोगों ने शायद इसमें से केवल एक चीज, ये वाली चीज देखी होगी, केवल ये वाला। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला रोलर, ये देखा होगा। स्मूथ वाला देखा हुआ है, बाकी तुम लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, तो आगे आगे चीजें देखते देखते एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है ना? स्मूथ व्हील्ड रोलर जो रोड पे अवेलेबल दिखता है ना, वो होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर। Smooth wheel roller are of two types: static smooth wheel roller, vibrating smooth wheel roller. The compacting efficiency depends on weight, diameter of each roller. Suitable for wide range of soil, preferably granular soil such as sand, gravel, and crushed stone. When compacting cohesive soil, these roller tends to form a crust over the surface, which may prevent adequate compaction in the lower portion. It is found to be more useful where crushing action is advantageous. It is also effective in smoothing surface of soil that have been compacted by tempting rollers. The desirable speed and number of passes for appropriate compaction of soil depends on the tire
on the type of soil and varies from location to location. About 8 passes are adequate for compacting 20 centimeter layers. In case of vibrating smooth wheel roller, the drum are made to vibrating by employing rotating or reciprocating mass. The rollers are helpful in many ways. First, a higher compaction level can be achieved with maximum work. Compaction can be done up to greater depth. Output is many times more than conventional roller. ये होता है तुम्हारा स्मूथ व्हील्ड रोलर. ये तुम लोग रोड पे काफी जगह देखते हो. न्यूमेटिक टायर रोलर. न्यूमेटिक टायर रोलर क्या होता है? In this type, number of pneumatic wheels are mounted on two or more axles under a loading platform pulled by tractor. This roller considered to be the most suitable to compact non-plastic silts and fine sands. In addition to the direct pressure due to rolling, there is also slight kneading action. They may also be small or large tired unit. The small tired unit usually have two tandem axle with 4 to 9 tires on each axle. The rear tire are spaced to travel over the surface between the front tire, which produces a complete average of surfaces. ये होता है न्यूमेटिक टायर रोलर. ये तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा होगा, है ना? उसको ढंग से एक बार देख लो. इससे बोलोगे न्यूमेटिक टायर रोलर. इसमें क्या होता है? इसके अंदर देख ले, ये वाला अलग अलग जगह, मतलब ये वाइब्रेशन के लिए, ये देख ले, ये छोटे छोटे व्हील्स है ना, जहां पर अगर स्पेस की या जहां पर हर जगह वो अपन स्मूथ टायर रोलर यूज नहीं हो सकते, उसके अंदर ये वाली चीज यूज हो सकता है. पर इसके अंदर देख इसका कितना टन तक ये ग्रोस वेट, इसका मतलब क्या प्रेशर क्रिएट कर रहा है. ये देख 15 से 200 टन तक ये वाला प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इतने छोटे व्हील्स होते हुए भी. आया समझ में? और ये सॉइल को ग्रेटर डेप्थ तक कॉम्पैक्ट कर सकता है. ये लाइन पढ़ ऊपर वाली, फिर तुम लोगों को ये वाली चीज समझ में आ जाएगी. इतने छोटे टायर्स होने पर भी ये 15 से 200 टन तक का प्रेशर क्रिएट करता है कॉम्पैक्शन के लिए. ये होता है तुम्हारा न्यूमेटिक टाइप रोलर. फिर आगे मूव ऑन करते हैं. शीप फुट रोलर. नाम तुम लोगों ने शायद इसका सुना हुआ होगा. सुना हुआ है? यस और नो? दिस टाइप ऑफ रोलर कंसिस्ट ऑफ. ओके, तो आगे मैं पढ़ा रहा हूं, जब ये वाला चीज देखोगे जब पता चल जाएगा. दिस टाइप ऑफ रोलर कंसिस्ट ऑफ होलो स्टील सिलेंडर. Hollow steel cylinder with projecting feet normally less than 25 centimeter in length. The weight of the roller can be increased by filling the drum with the wet soil. मतलब एक तरह से खाली होता है एकदम, बिल्कुल ही खाली. किस तरफ से? एकदम ये देखो, ये वाला जो पॉइंटर, ये जो सर्कल होता है, ये रोलर का सर्कल होता है, ये बिल्कुल यहाँ से होलो होता है. एक मिनट.
ये वाला पोर्शन बिल्कुल होलो होता है, ठीक है ना। जहाँ प्रेशर कम क्रिएट करना है वहां ये वाला होलो रोलर फेल दिया जाएगा। अगर जहां प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना हो वहां वेट सॉइल डाल के अपन प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। The weight and diameter of the roller may be varied and also the shape of the fit. These may be pulled by the tractor. Varying the weight of the roller by the use of the ballast in drum with vary the foot contract pressure. This type of roller found most suited to clay soil. During rolling operation, the soil under projecting feet get compacted and also considerable kneeling action to the soil. When the drum rotates the pad out of the soil, they kick to the material because of their shape. The thickness of the compacting layer is kept about 5 centimeters more than the length of each foot. About 24 or more number of passes of roller may be necessary to obtain adequate compaction. However, the top layer of the subgrade may be compacted using a smooth wheeled roller to grade properly finished surface. They are suitable for compacting all fine grade material but is generally not suitable for the use of cohesion less granular material. किसके लिए सुटेबल है? फाइल ग्रेन मटेरियल। और किसके लिए नहीं है? मतलब कोहेजन लेस ग्रेनुलर मटेरियल के लिए। these These roller can work at a speed of 6 to 10 किलोमीटर। कितनी स्पीड रहेगी? 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। Usually 6 to 10 passes will be needed to compact a 20 centimeter layer। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये पासेस क्या है? ये बार बार 2-3 जगह कॉम्पैक्शन में यूज आया है पासेस, ये पासेस क्या है? जल्दी से माइक ऑन करके आंसर दे दो। तुम लोगों ने ये चीज देखी है और तुम लोग ये आंसर दे सकते हो। बस ये समझने वाली बात है कि तुम समझे या नहीं पासेस का मतलब यहाँ पर। बिल्कुल पारसारण, रोलर को घुमाना 6 से 10 बार आगे पीछे करोगे ना, जब जाके ये कॉम्पैक्शन 20 सेंटीमीटर लेयर का कॉम्पैक्शन होगा। बिल्कुल सही है इसका आंसर। ये होता है, देख लो, शीप फुट रोलर। एक बार रोलर देखो, जब तक ये वाली चीज भी देखना कि ये देखो ये होलो है या नहीं है। ये होलो है सारा का सारा। देख लिया, फिर आगे मूव ऑन करें। वाइब्रेटिंग। अल्लाह भाई तू, अल्लाह देख। ये क्या करता है सर ये? देख, ये कॉम्पैक्शन अलग अलग लेवल पे है। अगर तुम्हें हैवी कॉम्पैक्शन चाहिए तो गिल्ली मिट्टी डाल दो। अगर लेस कॉम्पैक्शन चाहिए तो ये ऐसे ही मूव ऑन कर दो। इसके अंदर ये दोनों प्रोसेस अवेलेबल है। हाई कॉम्पैक्शन के लिए भी और लो कॉम्पैक्शन के लिए भी अवेलेबल होती है इसके अंदर, सी फुट रोलर के अंदर। इसके अंदर सी फुट क्यों बोला है? देखो इसके, ये देखो, ये जैसे ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये दिख रहा है आकाश? यस यस सर। हाँ, ये इसके इसके वजह से इसको सी फुट रोलर बोला है। अच्छा, सी फूड और इसके रोलर। अंदर क्या होता है? होलो सिलेंडर होता है। होलो सिलेंडर के अंदर अगर गिल्ली मिट्टी डाल देते हो तो हैवी कॉम्पैक्शन होगा। अगर नहीं डालते हो तो अपन लाइट कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है सर। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ये जब भी तो कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर ऑनलाइन स्टडी ज्यादा यूजफुल है।
एज कंपेयर टू इरिगेशन के अंदर। इरिगेशन के अंदर न्यूमेरिकल में रहता है, तो न्यूमेरिकल मुझे वो कल नोट से पढ़ाने पड़ेंगे, मेन चीज ये है, ठीक है। सर वो रोलर का शेप ऐसा क्यों था? और देवता जस्ट अभी आकाश को मैंने समझाया है, शीप फुट रोलर है, तो इसके देखो शीप पे जैसे वो एक तरह से पैर अंदर धसते हैं ना, उस टाइप के ये देखो, ये शीप का फुट जैसे माना गया है इसको, इसलिए इसको शीप फुट दिया है नाम। दिख रहा है पारस, दिख रहा है? दिख गया सर, दिख गया। ये मिट्टी में दबाव का काम करता है, जैसे शीप का फुट होता है ना, प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वैसे के वैसे इसका भी ये वाला, इसका काम यही है कि इसको इसीलिए नाम दिया गया इसके रोलर के शेप की वजह से, ठीक है पारस? नहीं तो सर फिर जो मिट्टी होगी सर वो ऊपर नीचे हो जाएगी, इससे फिर सर वापस लेवल करना पड़ेगा, फिर वापस कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। अब वो तो है, क्या करें। नहीं तो सर कॉम्पैक्शन तो अपन इसीलिए करते हैं ना, ताकि वो अंदर कोई एयर या वॉइड वगैरह वो निकल जाए। अब इसमें ये हाँ तो मिट्टी निकलेगी ना, तो ये नीचे- हमें बात तो सुन, अगर ये देख एक चीज बताता हूँ कि एक है ना पूरा जूता रख और एक सुई रख, सुई ज्यादा डेप्थ तक जाएगी या जूता जाएगा? जूता जाएगा सर। जूता कहाँ से जाएगा, सुई जाएगी ना भाई। सर मिट्टी में जूता एक पिन पॉइंटेड आवाज सुई का भी नहीं कहता, कील कील अगर रखनी होगी, अगर तुम लोग जो सर्वे के लिए करते हो, सर्वे के लिए जो एरो लेके जाते हो, एरो ज्यादा डेप्थ तक जाता है ना, या तुम्हारा जूता जाता है? हाँ दबाएंगे तो जरूर जाएगा। हाँ तो यही तो चीज हो रही है भाई, ये देख, ये डेप्थ तक जाने के लिए ये वाला है, इसका कॉम्पैक्शन लेवल ज्यादा होगा। ये ऊपर वाली जो तू बात कर रहा है ना, केवल ऊपर वाली सरफेस थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना, नीचे तक डेप्थ तक तो ये जाएगा ना, इसने देख, इसने बोला है ना 10 to 20 सेंटीमीटर कॉम्पैक्शन के लिए अपन को 5 से 10 बार यहाँ वहां फेरना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, पारस बार बार क्या पूछ रहा है? आकाश तेरे से पूछता हूँ मैं पर्सनल में, ठीक है? अल्ले अब आगे से आगे मूव ऑन करते हैं अपन। वाइब्रेटिंग रोलर, वाइब्रेटिंग टाइप रोलर हैव टू स्मूथ व्हील्स, ड्रम प्लस वाइब्रेटर। आकाश माइक ऑफ कर जल्दी। हाँ देखो, वाइब्रेटिंग टाइप रोलर हैव टू स्मूथ व्हील, ड्रम प्लस वाइब्रेटर। ये तुम लोग आजकल के केसेस में ये चीज यूज होती है रोड के अंदर, और तुम लोग देखते भी होंगे कि एकदम से वो रोक के एकदम से वाइब्रेशन क्रिएट करता है और वो वहां पर वाइब्रेटिंग होती है रोड के अंदर। One is fixed at the front and the other one is on the rear side of the vibrating roller. Both drums are of same diameter, length and also of same weight. Vibrating rollers cover the full area under wheel to make vibrating roller more efficient. Vibrating rollers are fixed with smooth wheel rollers. ये तुम लोगों ने ये वाली चीज भी देखी होगी, आजकल के तारीख में रोड पे जो वाइब्रेटिंग रोलर्स ही यूज आते हैं। Vibration of the vibrators arrange the particles by the first distributing even the arranged one. Vibrators are turned off during the reverse motion of the roller. In that time, only static weight directly act as a soil layer. Tamping foot roller. Tamping foot roller. They are high-speed, self-propelled or non-vibratory rollers. These rollers usually have steel-padded wheel and can be equipped with small blade to help for leveling the layer. The pads are trapped with rectangular faces. As stamping roller moves over the surface, the feet penetrate into the soil to mix and compact the soil from the bottom to top of the layer. Tamping foot roller consists of four wheels, and on each wheels kneading boots are fixed. Tamping rollers has more coverage area, about 40 to 50%. Contact pressure of the tamping roller varies from 400 to 8500 kilopascal. It is best dedicated to fine grained soil. A tamping foot roller is effective on all
सॉइल्स एक्सेप्ट क्लीन सैंड, ये होता है तुम्हारा टेम्पिंग फुट रोलर। ये होता है तुम्हारा टेम्पिंग फुट रोलर। इसके साथ रोलर कंप्लीट हुआ, और रोलर के अंदर कुछ है तो पूछ लो तुम लोग। ये पढ़ लो एक बार टेम्पिंग फुट रोलर के बारे में।